Good morning, dear students. We'll continue our chapter number 6 of movements. Okay, that is weathering the storm in Arsama. And we were here on 5th paragraph. Eventually, Prashant reached his village, Kalikuda. So we saw how was his journey till now. Okay, before reaching to his village, how difficult it was for him to face such kind of conditions before him. Okay, now passing all those conditions, passing all those things, now he finally reaches to his village Kalikuda. His heart went cold कि उसका दिल वहाँ पर उन जो भी सिचुएशन थी उसको देखकर ठंडा पड़ गया. Where their home once stood, there were only remnants of his roof now. कि जहाँ एक बार कभी उनका घर खड़ा हुआ करता था, घर होता था उनका, now what was there? Only its remainings. Remnants means remainings. सिर्फ उसका मलबा पड़ा था घर का. Means the house was totally damaged now. Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters. Okay? कि जो भी उनकी belongings थी, जो उनके घर के अंदर सामान था, कुछ पेड़ों पर लटका हुआ नजर आ रहा था, कुछ पानी के साथ बहकर जा चुका था, मतलब उनका घर पूरी तरह से तबाह हो चुका था. Young Prashant decided to go to Red Cross shelter to look for his family. Now बच्चे whenever these kinds of cyclone, these kinds of disasters occur in any country, then what happens is government set up some NGO types or these kinds of organizations like this Red Cross Society to help the people who have become homeless. Okay, who have no home to live or nothing to eat. Okay, then for these kinds of people government set up these kinds of organizations. Now Prashant also thought कि I might also go to these organization की Red Cross society में कि to look after the members of his family. Maybe he could find them there. Among the first place he saw in the crowd was his maternal grandmother. तो सबसे पहले उन्हें कौन दिखाई दिया? अपनी नानी. Weak with hunger, she rushed to him, her hands outstretched, her eyes brimming. कि भूख के मारे उसकी तरफ देखती हुई, हाथ फैलाती हुई, अपनी आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ दौड़ती हैं. It was a miracle. They had long given him up for dead. कि ये तो उनके लिए एक चमत्कार हो गया था. उन्होंने अब तक क्या समझा था कि प्रशांत शायद मर चुका होगा. Quickly word spread and his extended family gathered around him and hugged him tight in relief. तो ये बात वहाँ जल्दी से फैल गई कि प्रशांत is alive now और धीरे धीरे उसकी जितनी भी फैमिली थी वो सारी वहाँ पर गैदर होने लगी. प्रशांत एंशियसली स्कैन द मोटली बैटर्ड ग्रुप. ठीक है, तो उस मिली जुली भीड़ में प्रशांत ने सभी के सामने अपने फैमिली मेंबर्स को स्कैन यानी कि पहचानना शुरू कर दिया. His brother, his sister, uncles, aunts, they all seemed to be there. Okay, all relatives were there. By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over him. ठीक है, अब जैसे ही उसने नेक्स्ट मॉर्निंग में वहाँ की कंडीशंस देखी, देन व्हाट ही थॉट कि अब मुझे ही यहाँ पर कंट्रोल लेना होगा, मतलब मुझे ही यहाँ पर लीडरशिप अब संभालनी होगी, इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करके दिखाना होगा. He sensed a deathly grief settling upon the 2,500 strong crowd in the shelter. 86 lives were lost in the village. All the 96 houses had been washed away. So how many people were living in the Red Cross shelter now? They were 2,500 and 86, almost 86 lives जो है, मतलब इतने लोगों की जान अब तक वहाँ पर जा चुकी थी और 96 houses जो हैं वो वहाँ पर तबाह हो चुके थे. It was their 4th day at the shelter. So far they had survived on green coconuts, but there were too few to go around such a tumult of people. ओके, कि अब तक वहाँ पर जितने भी लोग ठहरे हुए थे शेल्टर में वो किसके सहारे जी रहे थे? उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था. ओनली द कोकोनट्स, जो नारियल के पेड़ थे, सिर्फ वही उनके लिए खाने का एकमात्र सहारा था और वो भी सभी लोगों के लिए इनफ नहीं थे. दे वर ऑल्सो अ फ्यू. Prashant, all of 19 years, decided to step in as leader of his village if no one else did. जो प्रशांत सिर्फ 19 ईयर्स का था, उसने अब फैसला लिया अगर कोई भी यहाँ की कमांड संभालने के लिए आगे नहीं आना चाहता है तो मैं आऊँगा, मैं ही पहला स्टेप लूँगा. He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rights. This time, the delegation succeeded and returned triumphantly, means victoriously, wading through the receding waters with food for the entire shelter.
अब सबसे पहला काम जो उन्होंने किया कि वहाँ का जो मर्चेंट था, जो व्यापारी था, उसके पास वो लोग गए और वहाँ जो उसने अनाज इकट्ठा करके रखा था उसको प्रेशराइज किया, उस पर दबाव दिया कि वो अनाज इन लोगों के लिए जो शेल्टर में रह रहे हैं उन लोगों के लिए प्रोवाइड कराए। और इस बार वो लोग ट्रायम्फेंटली मतलब विक्टोरियसली यानी कि जीत के साथ वापस आए, अनाज लेते हुए उस पानी में से निकलते हुए वापस आए। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटन। किसी को भी इस बात की परवाह थी ही नहीं, रोटन मीन्स सड़ जाना, कि वो राइस ऑलरेडी सड़ा हुआ था। सब भूखे इतने थे कि उनको बस अपनी भूख शांत करनी थी। Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire on which to cook the rice। तो वहाँ जो पेड़ थे उनसे उनकी टहनियाँ तोड़ी गई ताकि वो लोग राइस कुक कर सके उन्हें जलाकर। For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies। तो 4 दिनों में ये पहला दिन आया था कि वहाँ रहने वाले हर इंसान ने भर पेट खाना खाया हो। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit, and floating carcasses, and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured। तो अब उनका अगला काम क्या था, अगला कदम उसने क्या उठाया कि वहाँ पर जितनी भी गंदगी फैली है वोमिटिंग से, या फिर जो फिल्थ गंदगी है वहाँ पर, या फिर जो यूरिन पड़ा था, या फिर जो फ्लोटिंग डेड बॉडीज वहाँ पर थी एनिमल्स की या फिर ह्यूमंस की भी, तो उन सभी को क्लीन करना, उस जगह को जहाँ वो रह रहे थे उसे साफ सुथरी बनाना, या फिर जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं जो इंजर्ड थे, किसी को फ्रैक्चर हो रखा था, उनको सही ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना। दिस वाज द नेक्स्ट स्टेप। On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels। तो 5वें दिन वहाँ पर मिलिट्री वालों का हेलीकॉप्टर आया जो ऊपर से उनके लिए फूड पार्सल्स यानी कि पैकेट ड्रॉप करके गया। It then did not return। उसके बाद वो कभी नहीं आया वहाँ पर। The youth task force gathered empty utensils from the shelter. Then they deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopters that they were hungry। ओके अब उन्होंने क्या प्लान बनाया कि कैसे हम अपना मैसेज पहुंचाएं कि हम सब भूखे हैं। उन्होंने जितने भी वहाँ पर बच्चे थे उन सभी को मिट्टी पर लिटा दिया गया और अपने शेल्टर में जितने भी उनके पास खाली बर्तन थे वो सभी उन्होंने इकट्ठे किए और उन बच्चों के पेट पर रख दिए, और ताकि जो वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स घूमते रहते हैं आर्मी वालों के, वो ये देखें और उन तक ये मैसेज पहुँच जाए कि ये बच्चे अभी भी भूखे हैं, इन्हें और खाने की आवश्यकता है। ओके द मैसेज गॉट थ्रू, और उनको वो मैसेज मिल गया। And after that, the helicopter made regular rounds of the shelter, airdropping food and other basic needs। और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर वहाँ पर रेगुलर राउंड्स जो है करने लगा, उनके पास रेगुलरली फूड पैकेट्स ड्रॉप करने के लिए आने लगे। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड। अब प्रशांत ने देखा कि वहाँ पर जितने भी बच्चे प्रेजेंट थे उनमें से बहुत सारे बच्चे ऑर्फन यानी कि अनाथ हो चुके थे, जिनके पेरेंट्स अब अलाइव नहीं थे। He brought them together and put up a polythene sheet shelter for them. Women were mobilized to look after them while the men secured food and materials for the shelter। अब उसने क्या किया कि जितने भी वहाँ पर ये ऑर्फेंड अनाथ बच्चे थे उन सभी को इकट्ठे लेकर आया और उनके लिए एक पॉलीथीन शेल्टर बनाई गई जिसके अंदर वो सभी एक साथ रह सके, और जितनी वहाँ पर वुमेन थी, औरतें थी, उन सभी को इस काम में लगा दिया गया कि वो बच्चों की देखभाल करेंगी, इन बच्चों की। और जितने भी मैन थे, जितने भी आदमी थे, उन सभी को ये ड्यूटी दी गई कि वो लोग बाहर कुछ काम करके इन लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम करेंगे। As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief। अब जैसे जैसे वहाँ दिन बीतते जा रहे थे, प्रशांत was noticing कि जितने भी बच्चे हैं, ये ऑर्फन जो अनाथ बच्चे हैं, और जितनी भी विडो वुमेन हैं जो विधवा हो चुकी हैं, कि वो लोग दिन पे दिन अपने दुख में ज्यादा ही खोते जा रहे थे। He persuaded the women to start working in the Food for Work program started by an NGO, and for the children he organized sports events। अब उसकी प्लानिंग थी कि अगर ये बच्चे या फिर ये जो औरतें हैं ये किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए, अगर मैं इन्हें किसी काम में बिजी कर दूंगा कि इन्हें अपना दुख सोचने के लिए इनके पास टाइम ही ना बचे, तो शायद इनका दुख कुछ कम हो सकता है। और उसने यही किया। वुमेन जो जितनी भी औरतें थी उनको जो पास में जो NGO था जहाँ पर काम करने से खाना मिलता था, तो वहाँ पर उनको उस प्रोग्राम में भेजने लग गया, और जो बच्चे थे उनके लिए स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए गए ताकि वो कुछ एंजॉय कर पाएँ और अपने दुख को भूल पाएँ।
Prashant engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. Okay, तो वो ऐसे बच्चों जो अब अनाथ हो चुके थे, जो विधवा महिलाएं थी, उनकी जो जिंदगी बिखर चुकी थी, तो वो उनकी मदद कर रहा था कि कैसे इनके टूटे हुए जो जिंदगी के पहलू हैं वो उन्हें जोड़ पाए. The initial government plan was to set up institutions for orphans and widows. अब गवर्नमेंट का ये प्लान आया कि क्यों ना इन ऐसे बच्चों के लिए और औरतों के लिए सेपरेट इंस्टीट्यूशंस बनवा दिए जाएं. However, the step was successfully resisted, लेकिन इसका विरोध किया गया, as it was felt that in such institutions children would grow up without love and widows will suffer from stigma and loneliness. क्यों विरोध किया गया? क्योंकि प्रशांत को और उसके फ्रेंड्स को लगता था कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में बच्चे जो है बिना प्यार के पले बढ़ेंगे और ऐसी औरतें जो है उन पर कलंक लग जाएगा कि वो विधवा हो चुकी हैं और वो अकेलेपन में जिएंगी वहां पर. Prashant's group believed orphans should be resettled in their own community itself, possibly in new foster families made up of childless widows and children without adult care. फोस्टर फैमिलीज होती हैं, सौतेली फैमिलीज. तो अब प्रशांत और उसके फ्रेंड्स ने क्या आइडिया दिया गवर्नमेंट को कि इनको सेपरेट इंस्टीट्यूशंस के बजाय हम क्यों ना इनको अपनी ही कम्युनिटी में सेटल कर दें, कि ये जो विधवा जो महिलाएं हैं ये ही इन बच्चों का ध्यान रखें, कि ऐसे बच्चों को एक तरीके से अपनी माँ मिल जाएंगी और इन औरतों को इन बच्चों के रूप में अपने बच्चे मिल जाएंगे. तो एक तरीके से इनका एक अलग से नया सौतेला परिवार हम तैयार कर सकते हैं, जिससे इन्हें प्यार भी मिलेगा पलने बढ़ने में और ये अकेलापन भी महसूस नहीं करेंगे. It is 6 months after the devastation of the super cyclone कि अब 6 महीने हो चुके हैं इस तबाही को. This time Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. ठीक है, कि प्रशांत के पास इतना टाइम है ही नहीं कि वो अपने दुख को याद कर सके, इसलिए उसके वाउंड्स जो उसके घाव हैं वो धीरे धीरे अपने आप भरते जा रहे हैं. His handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief. कि यही वो चेहरा है प्रशांत का ही, जो वहाँ की जो विडो औरतें हैं, जो दुखी औरतें हैं या जो दुखी बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, वो अपने संकट के समय में, अपने दुख की घड़ियों में जिसका चेहरा उनके नज़रों के सामने आता है, सिर्फ इसी का ही, प्रशांत का ही. ओके, नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. कंप्लीट योर क्वेश्चन आंसर्स विच आई हैव ऑलरेडी सेंट इन द ग्रुप.